Hello 7th class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new exercise of math 2.c. As you can see, this is your mathematics books. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important points. Reciprocal of a fraction. Reciprocal is inverting the fraction by interchanging the numerator and denominator of the fraction. In other words, if the product of two non-zero numbers is 1, then they are called the reciprocal of each other. For example, A part, reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2. Okay, ये इसका इन्वर्स हो गया है बेटा. Now B part आप देखेंगे 7. So 7 का इन्वर्स क्या होता है 1 by 7. So 7 and 1 by 7 are the reciprocal of each other because 7 multiply 1 by 7 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 1. Now properties of reciprocal. First property, reciprocal of 1 is 1. Second property, reciprocal of non-zero whole numbers A is 1 by A. Now third, reciprocal of 0 does not exist. Example आप देखेंगे A part, आपको 3 का reciprocal find करना है. So the reciprocal of 3 is 1 by 3 because 3 multiply 1 by 3 equal to 1. Now B part, the reciprocal of 1 is 1 because 1 multiply 1 by 1 equal to 1. Now C part, the reciprocal of 2 by 7 is 7 by 2 because 2 by 7 multiply 7 by 2 equal to 1. Now D part, the reciprocal of 2 is to 5 by 9. So firstly convert into simple fraction. So the reciprocal of 23 upon 9 is 9 by 23 because 23 upon 9 multiply 9 upon 23 equal to 1. Now next, division of a fraction. So firstly division of a whole number by a fraction. हम किसी whole number से fraction को divide करते हैं तो हम कैसे find करेंगे? To divide a whole number by a fraction, multiply the whole number by the reciprocal of the fraction. हमें fraction का reciprocal find करना होगा, then हम divide करेंगे. Now A part आप देखेंगे example 15 by 5 by 7. So here 15 divide 5 by 7. So 5 by 7 का reciprocal क्या होगा 7 by 5. So equal to 15 multiply 7 upon 5 equal to 105 upon 5. Now our answer is 21. Now next, division of a fraction by a whole number. So अगर हम किसी fraction को whole number से divide कर रहे हैं, so to divide a fraction by a whole number, multiply the fraction by the reciprocal of the whole number. हम whole number का reciprocal find करेंगे. So A part आप देखेंगे 57 by 4. So here 57 divide 4. Now next step is 5 by 7 multiply हम कर देंगे divide के place पे and 1 by 4 हो जाएगा. So 5 multiply 1 upon 7 multiply 4 equal to 5 upon 28 is our answer. Now division of a fraction by another fraction. So in this situation, to divide a fraction by another fraction, multiply the first fraction by the reciprocal of the other fraction. So here आप example first देखेंगे 5 by 8 by 2 by 7. So 5 by 8 then multiply हम करेंगे 2 by 7 का हम reciprocal find करेंगे. So 7 by 2. So equal to 5 multiply 7 upon 8 multiply 2. So 35 upon 16. Now change into mixed fraction. So 2 is to 3 by 16 is our answer. Now start our exercise 2.c. A part, select the correct answer. First question है बेटा 2 is to 7 by 8 divide 1 by 4 is equal to. So इसे simplify करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? Firstly 2 is to 7 by 8 को हम simple fraction में convert करेंगे. So 23 upon 8 then divide 1 by 4 करेंगे. So 1 by 4 का reciprocal हो जाएगा 4 by 1. Now multiply करेंगे, कट करके हमारा आंसर आ गया 23 upon 2. So change into mixed fraction. So our answer is 11 is to 1 by 2. So D option is correct. Now second part, see in your book. By what number should 2 is to 1 by 3 be multiplied to get 14 upon 15? So इसके लिए हम क्या करेंगे 14 by 15 को divide कर देंगे 2 is to 1 by 3 से. So 14 upon 15 divide 7 by 3 हमारा आ जाएगा. Now
14/15 मल्टीप्लाई हम इसका 7/3 का रेसिप्रोकल कर लेंगे 3/7. नाउ कट करके हमारा आंसर आ गया 2/5. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 1/3 ऑफ 3/3 डिवाइड 1/3 ऑफ 3 इज. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनको फर्स्टली अलग अलग सॉल्व करेंगे. सो 3 प्लस 1/3 ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई 3. सो डिनोमिनेटर में हमारा आ गया 3 डिवाइड 1/3 मल्टीप्लाई 3. सो इक्वल टू कट करके हमारा आंसर आ गया बेटा 3 + 1/3 डिवाइड 1. सो 4/3. So change into mixed fraction. So 1:1/3 is our answer. So A option is correct. Now question number 4. See in your book. If a fraction divided by the sum of 2/3 and 1/4 result in 4/11, then the fraction is. आपको fraction find करना है. So यहाँ पर हमने fraction को x मान लिया है and then divide 2/3 plus 1/4. सो इक्वल टू आ गया 4/11. ओके. नाउ यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फर्स्टली हम प्लस करेंगे एलसीएम फाइंड करके. नाउ x डिवाइड 8 + 3/12 इक्वल टू 4/11. सो 8 + 3 इज 11. सो x डिवाइड 11/12 इक्वल टू 4/11. नाउ x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 11/12 डिवाइड के अदर साइड इक्वल टू के अदर साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो वो 4/11 मल्टीप्लाई 11/12. सो कट करके हमारा x की वैल्यू आ गई बेटा 1/3. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ स्टार्ट बी पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो ए पार्ट 1/11 रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा 11. नाउ बी पार्ट 5/8. सो रेसिप्रोकल इज 8/5. Now C part 10/7. So reciprocal is 7/10. Now D part 13/15. So reciprocal is 15/13 is our answer. Now question number 2. Divide the following. A part 32/7 by 8. So by के प्लेस पर हम डिवाइड पुट कर देंगे. सो 32/7 डिवाइड 8/1. सो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड को हम एंड 8/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8. नाउ कट करेंगे. सो आवर आंसर इज 4/7. नाउ बी पार्ट 2/9 बाय 46. सो 2/9 डिवाइड 46/1 इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/46. नाउ कट करके एंड मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1/207. सिमिलरली हम C, D, E, F, G, H पार्ट करेंगे बेटा इसके. Now start question number 3. Simplify the following. A part is 1/3 multiply 2/5 divide 4/5. So in this question बेटा 1/3 multiply 2/5 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4. तो कट करके हमारा आंसर आ गया 1/6. नाउ बी पार्ट सिमिलरली 5/9 डिवाइड 19/9 डिवाइड 12/13. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे 5/9 सेम रहेगा देन डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19/9 का रेसिप्रोकल इज 9/19. देन डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे एंड 12/13 का रेसिप्रोकल इज 13/12. नाउ 9 से 9 कट गया एंड 5 मल्टीप्लाई 13 इज 65 एंड 19 मल्टीप्लाई 12 इज 228. सो 65/228 इज आवर आंसर. सिमिलरली हम सी पार्ट करेंगे 2/3 ऑफ 3/4 डिवाइड 4/5. सो हेयर 2/3 ऑफ के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई पुट करेंगे. नाउ 3/4 देन डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4/5 का रेसिप्रोकल करेंगे. सो 5/4. नाउ कट करेंगे 3 से 3 कट गया बेटा 2 से 4 को हम कट करेंगे. सो 5/8 इज आवर आंसर. नाउ डी पार्ट 3/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6/3 मल्टीप्लाई 2:1/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 7/9. सो फर्स्टली हम 3/4 सेम लिखेंगे देन मल्टीप्लाई. फर्स्टली हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे. उसके लिए मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई पुट करके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे. सो 9/7 हमारा आ गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3/4 मल्टीप्लाई 16/3 मल्टीप्लाई 11/5 मल्टीप्लाई 9/7. नाउ कट करेंगे. सो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया बेटा 396/35. नाउ चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो our answer is 11:11/35. Now E part 1/4 minus
ब्रैकेट 13/2 ऑफ 4/39 प्लस 1/2. सो 1/4 माइनस 13/2 ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई पुट करेंगे, सो 4/39 देन प्लस 1/2. सो 1/4 माइनस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, सो हमारा आ गया 2/3 देन प्लस 1/2. नाउ एलसीएम फाइंड करेंगे 12, सो 3 माइनस 8 प्लस 6/12. नाउ 9 माइनस 8/12, सो आवर आंसर इज 1/12. नाउ एफ पार्ट, 1 प्लस 1/15 माइनस 9/10 divide 1:1/4 divide 1:1/2. सो हेयर फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एलसीएम फाइंड करके. नाउ सेकंड ब्रैकेट हमारी है सिंपली फ्रैक्शन कन्वर्ट करके इसको डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ जो 3/2 है उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/3. नाउ हमारा माइनस करके हमारा आ गया 5/13 देन डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 5/6. नाउ 5/13 डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में एंड 5/6 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सो 6/5. नाउ कट करके हमारा आंसर आ गया बेटा 1/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी इन योर बुक फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1:2/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल. सो 1:2/5 इज 7/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5/7. सो माइनस कर देंगे एलसीएम फाइंड करके, सो आवर आंसर इज 24/35. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सी इन योर बुक द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर. इफ वन ऑफ इट साइड इज 6:3/4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर. आपको वन साइड गिवन है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर, वन साइड इक्वल टू 6:3/4 सेंटीमीटर इक्वल टू 27/4 सेंटीमीटर. लेट अदर साइड भी x सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड लेंथ इज 27/4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ इज x सेंटीमीटर. नाउ 27/4 इक्वल टू के अदर साइड जाकर 4/27 हो जाएगा. सो 30 मल्टीप्लाई 4/27 इक्वल टू 40/9. So convert into mixed fraction 4:4/9 centimeter is our answer. Hence the other side of rectangle is 4:4/9 centimeter. Now question number 6, see in your book find the fraction which when multiplied by 3/4 gives 66/7. हम किस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, सो हमारा आंसर आ जाएगा 66/7. सो उसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हेयर 3/5 डिवाइड इक्वल टू के अदर साइड जाकर बेटा डिवाइड हो जाएगा. सो 66/7 डिवाइड 3/4. नाउ 66/7 डिवाइड का हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे एंड 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3. नाउ मल्टीप्लाई हम करेंगे, सो 264/21. नाउ कट करके हमारा आ गया 88/7. नाउ चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो 12:4/7 इज आवर आंसर. Now question number 7, see in your book 18 boxes of nails weight equally and then total weight is 49:1/2 kg. How much does each box weight? आपको हर बॉक्स का वेट फाइंड करना है. सो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 18, टोटल वेट इक्वल टू 49:1/2 kg मीन्स 99/2 kg. सो वेट ऑफ ईच बॉक्स इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल वेट में को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस से. सो टोटल वेट इज 99/2 kg डिवाइड 18. ओके, नाउ 99/2 डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 18 का रेसिप्रोकल इज 1/18. नाउ कट करके हमारा आंसर आ जाएगा 11/4 kg. सो चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सो 2:3/4 kg. Hence each box weight is 2:3/4 kg. Now question number 8, see in your book Avni is making bookmark like the one as shown in the adjacent figures. How many bookmarks can she make from a 14.70 meter long ribbon? आपको एक शेप दी गई है. ओके, इसमें आपको बताना है कि उसने कितने बुकमार्क बनाए हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ अ रिबन इक्वल टू 14.70 मीटर
Length of bookmark is 10:1/2 centimeter. So convert into simple fraction 21/2 centimeter. So इसको सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से. सो हमारा आ जाएगा 21/2 मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि 100 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/100. सो आवर लेंथ ऑफ बुक मार्क इज 21/200 मीटर. नाउ नंबर ऑफ बुक मार्क हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ, जितनी रिबन की लेंथ है उसको हमें डिवाइड करना है लेंथ ऑफ अ वन बुक मार्क. सो टोटल लेंथ इज 14.70 मीटर. देन डिवाइड हम उसको करेंगे 21/200 मीटर से. सो इसके लिए हम फर्स्टली डेसिमल को हटा लेंगे. सो हमारा आ जाएगा 1470/100. देन मल्टीप्लाई 200/21. नाउ our answer is 140. Hence she can make 140 bookmarks. Now question number 9. See in your book 1/8 of a number equals 2/5 divide 1/20. What is the number? So इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, let the number be x. Then 1/8 of x equal to 2/5 divide 1/20. So 1/8 x हमारे एक साइड आ गया एंड अदर साइड इज 2/5. डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे एंड 1/20 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 20. नाउ x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल टू के अदर साइड जाकर रेसिप्रोकल हो गया उसका, सो 8/1 हो गया. नाउ x इक्वल टू 64 इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन. सो फर्स्टली डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. हम किसी होल नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना होगा, देन हम डिवाइड करेंगे. नाउ ए पार्ट आप देखेंगे एग्जांपल 15/5/7. सो हेयर 15 डिवाइड 5/7. सो 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/5. सो इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 7/5 इक्वल टू 105/5. Now our answer is 21. Now next division of a fraction by a whole number. So अगर हम किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, so to divide a fraction by a whole number multiply the fraction by the reciprocal of the whole number. हम होल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे. so A पार्ट आप देखेंगे 57/4. so here 57 divide 4. Now question number 11. See in your book Rama has 6:1/4 kg cotton for making pillows. If one pillow takes 1:1/4 kg cotton, how many pillows can she make? Similarly बेटा यहाँ पर हमें टोटल कॉटन दिया हुआ है 6:1/4 kg मीन्स 25/4 kg. तो कॉटन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन पिल्लो. वन पिल्लो के लिए हमें कितना कॉटन चाहिए 1:1/4 kg मीन्स 5/4 kg. सो नंबर ऑफ पिल्लोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉटन को डिवाइड करना है कॉटन फॉर वन पिल्लो. सो टोटल कॉटन इज 25/4. देन डिवाइड कॉटन फॉर वन पिल्लो 5/4. सो डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में एंड 5/4 का रेसिप्रोकल इज 4/5. नाउ 5 इज आवर आंसर. हेंस रामा कैन मेक 5 पिल्लोज. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. सी इन योर बुक the product of two numbers is 23:3/4. if one of the number is 6:11/14, find the other. So let the number be x. Product of two numbers is 23:3/4, so 95/4. So one number is given 6:11/14, so change into simple fraction 95/11. So 95/11 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 95/4. सो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 95/4 डिवाइड 95/14 बिकॉज 95/14 इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा. नाउ 95/4 मल्टीप्लाई देन 95/14 का रेसिप्रोकल इज 14/95. नाउ कट करके हमारा आ जाएगा 7/2. नाउ चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो x की वैल्यू आ गई 3:1/2. हेंस द अदर नंबर इज 3:1/2. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. सी इन योर बुक बाय व्हाट नंबर 68:1/5 we multiply to get 15:2/5. So in this question let the required number be x.
So x multiply 68 is to 1 by 5 equal to 15 is to 2 by 5. So convert into simple fractions. So x multiply 341 upon 5 equal to 77 upon 5. So 341 upon 5 इक्वल टू के अदर साइड जाकर डिवाइड हो गया बेटा. सो x इक्वल टू 77 upon 5 डिवाइड 341 upon 5. नाउ divide convert into multiply. So 77 upon 5 multiply, then reciprocal of 341 upon 5 is 5 upon 341. So multiply करेंगे हम. So कट करके हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 77 upon 341 equal to 7 upon 31. Hence the required number is 7 upon 31. So children, your exercise and chapter also is over. Your homework is that you have to write it in your notebook. Thank you students.